वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ज्योमेट्री सेशन। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ईच प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.3। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिस सेट व्हाट वी हैड स्टडीड इन द अर्लियर सेशन। सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आर्क, definition of central angle, measure of arc, property of sum of the two arcs, then congruent arcs when the two arcs are said to be congruent, and the properties of congruent arcs theorems. तो properties of congruent arc के थ्योरम में हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी the chords corresponding to the congruent arcs of a circle are congruent, और सेकेंड प्रॉपर्टी थी that is arcs correspond to congruent chords of a circle or congruent circles are also congruent। तो ये दो थ्योरम्स हमने देख लिए थे पिछले सेशन में, हमने उनको प्रूव किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थ्योरम्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व the all problems from the practice set 3.3. remember that there are only 3 problems in the practice set 3.3 and now we are going to solve each problem one by one. Okay, so the first problem of the practice set 3.3, that is, in the question is given, in circle with center C, point D, E, F, G are concyclic points. Okay, concyclic points means the points lies on the circumference of the circle, उनको हम concyclic points कहते हैं। उसके बाद that is the measure of angle ECF is given 70 degree, measure of angle ECF is given to 70 degree, and then measure of arc DGF it is equal to 200 degree. So we have to find out measure of arc D and measure of arc DEF। तो यहाँ पे आर्क डी का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है और पूरे आर्क डीईएफ का मेजर भी आपको फाइंड करना है। तो ये दो मेजर आप फाइंड करने वाले हैं। चलिए इनको कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे एंगल ईसीएफ का मेजरमेंट दिया है, इसका मतलब वी कैन इजीली फाइंड आउट द मेजर ऑफ आर्क ईएफ। व्हाई आर्क ईएफ? बिकॉज बाय सबट्रैक्टिंग द मेजर ऑफ आर्क ईएफ फ्रॉम द डीईएफ वी गेट द मेजर ऑफ आर्क डी। तो आर्क डी का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए ईएफ का मेजरमेंट निकालना बहुत आवश्यक है। तो आर्क ईएफ इज इक्वल टू एंगल ईसीएफ बिकॉज वी नो दैट मेजर ऑफ आर्क इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो आर्क ईएफ का मेजरमेंट होता है 70 डिग्री। उसके बाद आर्क डीजीएफ इक्वल टू 200 डिग्री, दैट इज गिवन। सो हेंस बाय द मेजर ऑफ मेजर आर्क वी कैन सिंपली फाइंड आउट आर्क डीईएफ is equal to 360 degree minus 200 degree. So we get the measure of arc DEF equal to also, that is 160 degree. Then now arc DE is equal to subtraction of arc DEF and arc EF. It means 160 minus 70, it is equal to 90 degree. तो ये रहे measures of these arcs। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले so first one, measure of arc EF equals to measure of angle ECF. And why? What is the reason of this one? That is, since measure of arc equal to central angle therefore we get measure of arc EF is equal to 70 degree, because measure of angle ECF equal to 70 degree given. So measure of arc ECF, measure of arc EF is equal to 70 degree. उसके बाद now measure of arc, that is DGF equals to 200 degree. This is given. Therefore we can write, therefore measure of arc DEF, measure of arc DEF equal to 360 degree minus measure of arc DGF. So it is equal to 360 degree minus 200 degree, it is equal to 160 degree. Now measure of arc DE equals to measure of arc DEF
minus measure of arc EF, और ये क्यों? बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स हमने पिछले वीडियो में देखा था, दैट इज द सम ऑफ टू आर्क्स if they have only one point in common is equal to the remaining newly formed arc. अब यहाँ पे DE और EF की जो सम होगी वही DEF का मेजरमेंट होगा. इसका मतलब अगर EF और DEF का मेजरमेंट हमें पता है तो DE का मेजरमेंट इन दोनों के डिफरेंस जितना होगा. तो यहाँ पे हमने लिखा है सो हेंस इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DEF हमें कितना है 160 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू 70 डिग्री. सो हेंस मेजर ऑफ आर्क DE is equal to 90 degree. So measure of arc D equal to 90 degree. This is the solution of the first problem from practice set 3.3. तो इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. चलिए सेकंड प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. इन द फिगर QRS is an equilateral triangle, then prove the following. तो QRS यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपको प्रूव करना है फर्स्ट आर्क RS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR. इसका मतलब ये तीनों जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है. सेकेंड प्रूफ है मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल टू 240 डिग्री. आर्क QRS यहाँ तक 240 डिग्री का मेजर है, ये आपको प्रूव करना है. चलिए बता देता हूं कि ये किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं. सिंपल है यहाँ पे. तो ट्रायंगल QRS यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हमने पीछे जो तो प्रॉपर्टीज देखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ओके, तो उनके आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंपल है QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर साइड QR इक्वल टू RS इक्वल टू QS, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होते हैं, बट इट मींस कॉर्ड QR कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RS कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड QS, ये आएगा. लेट द स्टेटमेंट नंबर 1. अब इसके बाद आप ये कह सकते हो बट वी नो that what is arcs corresponding to the congruent chords of a circle are congruent. तो congruent arc chords को correspond करने वाले arcs भी congruent होते हैं. इसका मतलब ये हुआ arc QR congruent to arc RS congruent to arc QS, तीनों arc congruent आ गए. आपका पहला स्टेटमेंट congruent प्रूव हो गया. अब सेकेंड आपको QRS का मेजरमेंट 240 डिग्री निकालना है, बट उसके लिए पहले ये जो तीन congruent arc हैं इनकी आपको एडिशन करनी पड़ेगी. तो इनकी एडिशन करते हैं. इनकी एडिशन आएगी आपकी आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि तीनों को ऐड करने के बाद पूरा डिग्री मेजर ऑफ सर्कल आता है. तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज वी कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 QR प्लस QR प्लस QR, क्योंकि RS और QS को हम QR के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. So 3QR equal to 360 degree, it means 1QR is equal to 120 degree. तो QR का मेजरमेंट आएगा 120 डिग्री. उसके बाद RQRS is the sum of QR plus RS, but these two are also congruent, so hence QR plus QR it means 2QR. So 2 into 120 it is equal to 240 degree. ये इसका सोल्यूशन और इसका प्रूफ आएगा. तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन प्रूफ करते हैं. So triangle QRS is an equilateral triangle. Therefore we can write chord QR congruent to chord RS congruent to chord QS, और इसका रीजन होगा since sides of an equilateral triangle. Sides of equilateral triangle. Sides of equilateral triangle. So, but arcs corresponds to congruent chords. Congruent chords are congruent. Therefore we can write
therefore that is arc QR congruent to arc RS congruent to arc QS। तो इसका मतलब तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेट द स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS is equal to 360 degree, is equal to 360 degree by the property of measure of arcs। तो यहां पे लिखते हैं, so therefore we can write that is 3 measure of arc QR is equal to 360 degree from statement number 1। तो statement number 1 से ये प्रूव होता है कि यहाँ पे तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनका मेजर भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। सो QR plus QR is equal to 3QR equal to 360 degree। Therefore we can write that is measure of arc QR is equal to 360 degree by 3 equal to 120 degree equals to 120 degree। now measure of arc QRS आपको फाइंड करना है। सो measure of arc QRS is equal to measure of arc QR plus measure of arc RS। और इसका रीजन होगा सिंस प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क्स के हिसाब से यहाँ पे QR और RS में एक ही कॉमन पॉइंट है R। इसका मतलब इन दोनों की एडिशन QRS जितनी होगी, जहां की अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज बट मेजर ऑफ QR इज इक्वल टू 120 डिग्री, मेजर ऑफ QR इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 देते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2। सो देयरफॉर वी कैन राइट मेजर ऑफ आर्क QRS is equal to 2 measure of arc QR from 1 and 2, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड से होगा, क्योंकि QR प्लस RS इन दोनों की एडिशन जो है वो 2QR क्यों लिखी है, बिकॉज यहाँ पे QR इक्वल टू RS है, तो वहां पे RS को हमने सब्स्टिट्यूट किया है QR के साथ, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट इज मेजर ऑफ 2 मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QRS। ओके, बट अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, तो फर्स्ट से हमने यहाँ पे लिखा है द मेजर ऑफ आर्क QR इक्वल टू 120 डिग्री, सो हेंस वी कैन राइट 120 into 2 it is equal to 240। so that's why therefore we can write therefore we can write measure of arc QRS is equal to 2 into 120 degree from second, क्योंकि सेकंड में से हमने 120 डिग्री मेजर लिया है QR का, सो इट इज इक्वल टू 240 डिग्री। सो ये रहा आपका सेकंड प्रूफ, और इसके पहले जो आया था वो आपका फर्स्ट प्रूफ था RS इक्वल टू QS इक्वल टू QR, द ऑल थ्री आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज द मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल टू 240 डिग्री। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 3.3 का, वो अभी देखते हैं। Last problem, third from the practice set 3.3, and this problem we have in the figure, that is chord AB is given congruent to chord CD, then prove that arc AC congruent to arc BD। जहां पे आपको AB congruent to CD दिया है और प्रूव करने को कहा है AC congruent to BD। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है arc AC congruent to arc BD। तो ये दो आर्क आपको प्रूव करने हैं, तो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। तो किस तरह से इनको हम प्रूव कर सकते हैं देखते हैं। सिंपल है, chord AB congruent to chord CD, it means by the property of congruent chords or the corresponding congruent arcs,
that is arc ACB congruent to arc CBD, because we know that what is arcs correspond to congruent, chords are congruent. तो उस थ्योरम के हिसाब से हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो ये दोनों chords इक्वल हो गए, बट इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करते हैं नाउ। बट arc ACB is the sum of two arcs, that is AC plus BC. Statement number 2 by the addition property of the sum of measures of arcs. उसके बाद arc CBD भी दो आर्क की एडिशन है, दैट इज आर्क BC प्लस आर्क BD। स्टेटमेंट नंबर 3। अब स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से ये प्रूव होता है AC प्लस BC इक्वल टू BC प्लस BD। दोनों साइड से अब हमारा BC कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा आर्क AC कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। तो चलिए यहाँ पे प्रूव करते हैं। पहले कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ये गिवन है, दिस इज गिवन, therefore we can write so by but or maybe therefore we can write arc ACB is congruent to arc CBD, arc ACB congruent to arc CBD because since by arcs corresponds to congruent chords। आर्क्स करस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रुएंट chords, इसकी वजह से ये इक्वल आए, तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, बट बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स, by property of sum of measures of arcs we can write that is arc ACB is equal to arc that is AC plus arc next BC। इसको स्टेटमेंट सेकंड कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट arc, सिमिलरली arc CBD is equal to arc BC plus arc BD। स्टेटमेंट नंबर 3। अब स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 को टैली करते हैं। तो फर्स्ट में ये जो दोनों आर्क है वो इक्वल है, और सेकंड में AC प्लस BC इक्वल टू ACB है और BC प्लस BD इक्वल्स टू CBD है। इसका मतलब ये होता है कि LHS of from the equation first, LHS of the both of this equation are equal, so hence RHS are also equal। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore we can write that is arc AC plus arc BC is equal to arc BC plus arc BD from 1, 2 and 3। 1, 2 and 3। अब यहाँ पे दोनों साइड से BC कैंसिल हो जाएंगे, और therefore we get that is arc AC is congruent to arc that is BD। So hence this is proved that, ये हमको प्रूव करना था, arc AC congruent to arc BD, जो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। तो ये रही आपकी प्रैक्टिस सेट 3.3। अब इसके बाद हमें देखना है इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होती है, और व्हाट इज द थ्योरम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड और द टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो उसको हम इसके बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। बाय।